हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया था कि इस बार वी विल डू विद द ब्रश एंड कलर्स ओनली. सो फर्स्ट आई एम टेलिंग द मटेरियल्स. यू नीड अ पेंसिल, eraser and a sharpener. These are basic things जिसकी help से you can make the design, you can trace the design. Okay, so today I am making the very small project which will be completed in one episode. This is the board. Okay, so as always you know the materials, the Faber-Castell this thing and the artistic color. So without wasting any time, I'm starting the project. This is the marker, so I will use the new paper. Okay, see, this is very decent and very easy step. First you need to draw this. Okay, after that just you need to make the circle like this. This is the Gond art typical bird. Okay, and just make the body. As simple as that. Just draw the leg like this and just draw the other leg like this. Very simple. Now I am using black color and 0 number brush to make the lines, everything with the color and brush. Okay, so I need black color. This is my black color. First I will make the lines. See, I am using black color and I am using zero number brush to make any subject. Okay, like this, the big portion. Okay, now I am making the head portion like this. Okay, after that we have to make it like this and this, and just you have to make the body. I think brush is easier than marker. See, now body is ready. Okay, after that you need to make the leg portion. Like this. Just divide the body and head like this. Okay, you can divide into 3 parts. जो काम हम मार्कर से कर रहे थे, सेम काम आई एम डूइंग विद द ब्रश. जस्ट मेक द eyes, fill it with black color. Okay, this is the simplest bird. Okay, after that just we will fill the colors. After that we will start the detailing work. So I will use yellow color to make this bird. To make the body, so I am using yellow color to make this portion of the body. So many colors are there in my brush, so I need to spread all the color equally. See, you can remove your color here. एक्सेस कलर भी आप मत लीजिए, वरना वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. According to your requirement, you have to take the color. See, my yellow portion is done with the color of, okay, yellow. Now I am using which color? Okay, yellow and orange. What do you say? The combination is good. So now I am using orange color to color this portion like this.
No need to do second coat because first coat is more than enough. बड़ी बड़ी पिक्चर्स आप गूगल की हेल्प से या किसी से देख के बना सकते हैं, बट यू नीड टू मोर अबाउट you need to know more about the Godard's or any other folk painting. Don't need to do copy only, just know the facts about the. I am erasing the pencil portion because it is there. Okay, like this. Now I am using only two colors to make this bird, so I am applying yellow color over there. If you will get to know what are the main theme and small subjects like birds, peacock, deer, lion, anything, then you can make big picture very easily because you got to know the techniques of that folk art. Okay, so ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे चीज़ों पे होमवर्क करिए, छोटी चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए, then you can make anything about this folk art. Like this. Now the color portion, base portion color is ready. Okay, now I am using this peach color to make the legs and the beak. Always use base coat first. Even जब भी आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, आई पर्सनली फील जस्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइटर टू डार्कर. इट्स टोटली अप टू यू. इफ़ यू आर बिगनर, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर. देन अगर आप कोई मिस्टेक होगी भी, देन यू कैन कंट्रोल योर मिस्टेक, यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक. ओके, सो दिस इज़ द टिप. कोई भी आर्ट फॉर्म आप लाइट कलर से डार्क कलर की ही तरफ जाइए, देन इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, अभी ये हमारा बेस हो गया कंप्लीट. अभी हम इसकी डिटेलिंग वर्क पे जाएंगे. ओके, थोड़ा सा कैमरा में पास कर लूँ. ओके, अभी डिटेल वर्क जाने के लिए हम कोई एक कलर भी ले सकते हैं डिटेल वर्क के लिए, या दूसरा कलर भी ले सकते हैं. जैसे इस पे मैंने दो कलर्स यूज़ किए, बट मैं एक सिंगल कलर लेती हूँ इसकी फिनिशिंग के लिए. दैट विल बी रेड. ओके, रेड कलर इज़ गुड. चलिए, 0 नंबर ब्रश लूँगी और रेड कलर के साथ मैं फिनिशिंग स्टार्ट करूँगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा कलर ले रही हूँ. थोड़ा सा ब्रश को पानी में डिप करके यहाँ पे एक प्रॉपर सूदिंग सा कोट बनाया. अभी मैं जो फिनिशिंग दे रही हूँ वो है हमारी सिंपल. ये देखिए, एकदम सिंपल ऐसे. सिंपल वाली, बहुत ही सिंपल है ये, पर ये अपने साथ पूरी गोंड आर्ट की इमेज बना लेगी क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं गोंड आर्ट टेक्निक टू मेक दिस बर्ड. सी, ये आपका ख़त्म हो गया. अब हम एक काम कर सकते हैं, रेड कलर से ही हम ऑरेंज पे भी फिनिशिंग देंगे, या आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ये वाली वर्क, ये देखिए, जस्ट आई एम मेकिंग सम लाइन्स ओवर देयर लाइक दिस एंड इट इज़ लुकिंग गुड. it should be close, so you can make little bit closer line. Again I am using same technique here, like this.
आई थिंक ब्रश से काम करना मोर देन ईजियर देन द पेन. सो आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं आप काम कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस. अभी आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. फेस के लिए आप यू कैन मेक लाइक दिस. ये डॉट्स आप हैं, ऐसे वाले डॉट्स आप सर्कल्स फॉर्म में, राउंड, क्योंकि हमारा फेस ओवल है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फिलर्स दे सकते हैं टू मेक द हेड. ये देखिए 0 नंबर की ब्रश, लॉन्ग हेयर ब्रश, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं टू मेक द कोडार्ट. अभी अगेन हम ब्लैक कलर लेंगे. सी, आई एम टेकिंग ब्लैक कलर and just draw the line like this to make the legs. See, again यहाँ पे भी आपको वैसे ही करते जाना है जैसे आपने just make the finishing at a time. ओके, अभी आप यहाँ पे फिर फिनिशिंग दे दीजिए, क्योंकि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, देन यू कैन मेक द फिनिशिंग लाइन. Just draw a line like this. Okay, स्मॉल चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचर हैं और आप सिखाना चाहते हैं देन आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस कोर्स टू द टीचर्स एंड बिगनर्स ऑल्सो. ओके, ये हमारी एक बर्ड हो गई, बेहद बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनी हुई. अब मैं आपको एक दूसरी बर्ड बताती हूँ जो कि एकदम सिंपल होगी, जो मैंने पहले भी एक बार वर्कशॉप पे बताई हुई है. सिंपलेस्ट ढंग से मैं आपको बता देती हूँ. जैसे ये आपका सर्कल हो गया ऐसे, ठीक है. ये आपकी बॉडी गई ऐसे. मेरे ख्याल से स्पेस कम हो जाएगी, मुझे दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो इसको ओके, मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी बर्ड बनाती हूँ छोटे से फॉर्म में. इसको छोड़ देते हैं. ये वाली बर्ड हमारी हो गई. जस्ट ट्राई. चलिए यहाँ पे ये देखिए मैं डायरेक्ट पेन यूज़ कर रही हूँ. यू कैन यूज़ पेंसिल, आप देख सकते हैं. ओके, बॉडी, और यहाँ से ही हमें एक विंग्स निकालना है ऐसे. ये वाला हमारा विंग्स पोर्शन है, और यहाँ से इस साइड से ये हमें ऐसे निकालना है. आप देख रहे हैं ये बॉडी हो गई, ये विंग्स का पोर्शन हो गया. तो ये हमारी विंग जो उसकी ऐसे आएगी, और ये बॉडी यहाँ से सपोज विंग्स आ रही हैं हमारी, तो ये ऐसे चली जाएगी. एंड द बॉडी शुड बी लाइक दिस. ओके, दिस इज आवर फ्लाइंग बर्ड. अब आइज के लिए ऐसे एंड बीक के लिए ऐसे. ये आपकी ड्रॉ हो गई. अब इसको हम गोंड स्टाइल में करना है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे ब्लैक आउटलाइन पे, जैसा कि हर बार हम. अच्छा, ब्लैक आउटलाइन हमारी हो चुकी है. हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम कितने कलर से करेंगे वो हम देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप लीजिए ब्रश. हमने लिया ऑरेंज कलर एंड जस्ट फिल दिस पोर्शन. आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के टाइम, जैसे आपको कंफर्टेबल हो. ट्राई टू मेक इट इनसाइड द लाइन. Just fill with the color.
ओके। अभी आप सेम कलर से दोनों कर सकते हैं, जैसे मैं ऑरेंज कलर इधर भी यूज़ ही कर रही हूँ, ठीक है। आप दो विंग्स को टू कलर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कलर से भी यूज़ कर सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सिंगल कलर से अभी दिखा रही हूँ। मे बी आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको टू कलर्स, डबल शेडिंग, कभी कभी समटाइम्स आई एम यूजिंग थ्री कलर्स, ओके, वो सब भी दिखाऊंगी। कंफ्यूजन किसी भी तरह का क्रिएट ना हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द सिंगल कलर टू कलर दिस विंग्स। ये बाहर निकला है, ये मिस्टेक आप मत करिएगा। मैं इसको इसमें कवर कर ले रही हूँ, फिनिशिंग दे दूंगी। ओके, ये आपका विंग्स वाला पोर्शन हो गया। अभी बॉडी के लिए जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ही वाइब्रेंट सा इसको बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसके साथ चलिए कुछ डिफरेंट बनाते हैं। मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ और ये पूरा फुल पोर्शन जो है मैं ब्राउन कलर से फिल करूँगी, ऑरेंज के साथ ब्राउन। इट शुड बी वाइब्रेंट, इट शुड बी ब्राइट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्राउन कलर विथ ऑरेंज। सी द कलर कॉम्बिनेशन। फिलिंग करने के लिए हमेशा फ्लैट ब्रश लीजिए, ब्रॉड ब्रश लीजिए, जिससे आपकी फीलिंग्स अच्छी आए। थोड़ा पानी एक्सेस है तो मैं निकालूंगी ऐसे, और यहाँ पे कलर की like this, okay, now let it get dry। थोड़ा सा इसको हम ड्राई होने देंगे, तब तक हम ब्लैक कलर से इसकी आईज बनाएंगे। ये वाला पोर्शन आपका होगा ब्लैक आईज के लिए, ठीक है। बीक हम थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं और हम लेते हैं येलो कलर टू मेक द बिग पोर्शन। ऐसे जस्ट फिल द येलो कलर इनसाइड द ट्राइंगल, इट इज ओपन, ओके। ये हमारा बेस कलर कंप्लीट हो गया, जो बेसिकली गोल्ड के साथ होता है। अब हम इस पे डिटेल वर्क पे चलेंगे। चलिए, ये हमारा ड्राई हो गया है, अब हम इस पे डिटेल वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लैक आउटलाइन थी हमारी, जो अंदर हाइड हो गई है कलर के बेस कलर रेडी करने में, पहले हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 0 नंबर ब्रश। लाइक दिस। सी, ये हमारा black portion is ready, actually finishing is ready like this, okay। अभी हम we will work on the next other feather। I'm taking the black color to make the, okay, just make it the big portion, okay। Now we will start detail work. Now I am making some lines like this, one line, and I am making this line double like
like this. Again I'm making one line and I'm making this line double. If you're comfortable with the pen, then you can use marker pen. There is wet portion, that's why color is not there. Like this. Okay, same process we have to do it there, like this. थोड़ा सा मेरा कलर वेट है. See the difference? जहाँ पे वेट है वहाँ कलर प्रॉपर नहीं आ रहा है, and where place is the totally dry, the color combination is good there. ओके, ये हमारी लाइन वर्क कंप्लीट हो गई. नाउ आई एम डूइंग लाइक दिस. Just take the black color and make some lines like this. This is very wet, but don't worry, after drying you can apply the black coat. इट्स गुड ना कि जहाँ पे वेट है आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें किस तरह से ख़राब हो रही हैं, और जिस तरह ड्राई है पूरा पोर्शन वहाँ की फिनिशिंग अलग है. ट्यूटोरियल में अगर ये चीज़ हो रही है दैट इज़ वेरी गुड कि आपको दोनों ही प्रोसेस का आइडिया लग जा रहा है, एंड यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक. You will wait to dry. Okay, this is the one portion. Now like this. ये इसकी फिलर्स हुए. फिलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है गोंड पेंटिंग में. गोंड पेंटिंग बहुत बार ऐसा होता है कि हम देख के कर लेंगे, यस यू कैन, बट थोड़ी सी जो टेक्निकल बातें हैं वो आपकी जानने ज़रूरी है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर जानिए. ठीक है, ये हमारा हो गया है पोर्शन. अभी आपको जस्ट मेक द लाइंस एंड सी ऐसे. This is the detail work of Gond art. See, ऐसी डिटेलिंग आपको पूरे विंग्स पे करनी है. ठीक है, आपको इसी तरह से डिटेलिंग पूरे विंग्स पे देनी है विद द ब्रश, विद द मार्कर. इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं. इट टेक्स टाइम, सो प्लीज़ हैव पेशेंस. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज इट टेक्स अ टाइम. इट्स वेरी डिटेल वर्क. ओके, द विंग्स आर रेडी. नाउ I will work on this portion. So make this portion I am using the white pen, or because time is less I have to complete this bird portion in the one episode. That's why I am using this pen. You can use the color like this. Just make the line like this.
बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि मैं 20 to 25 मिनट्स की वीडियो बनाऊं. दैट इज़ ईजी फॉर मी एंड दैट इज़ ईजी फॉर यू, बिकॉज डाउनलोड करने में भी आपको उतनी ही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से राइट नाउ आई एम मेकिंग द स्मॉल वीडियोज़. लाइक इट इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़ सफिशिएंट द 25 मिनट्स और टू 30, समटाइम्स वो 30 मिनट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि काम करते समय हमें पता नहीं चलता और वीडियो लंबी हो जाती है. बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्मॉल वीडियो. ऐसे just you have to do feelers like this. See, ये इसके फीलर्स हो गए, ये इसके फीलर्स हो गए. ठीक है, अब हमारा बीक वाला पोर्शन बचा है, जिसको हम just you can make the lines like this. Okay, now bird is ready. एक बर्ड हमारी ये थी और सेकंड बर्ड हमारी ये थी. बर्ड आप कैसे भी बनाइए, आपको मैंने 2 टाइप की बर्ड्स बता दी हैं, तो अब आप प्रैक्टिस करिए और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.